Hello, friends. How are you? I hope you are fine staying at home during this pandemic. And today we'll read 7th chapter of Snapshot book for the students of 11th class. And we already shot two videos from this story. And in the story, I told you about a doctor whose name is Andrew Manson. And Andrew Manson is a novice. Novice means a person who does not have much experience, and he is a junior doctor, and he is working under Dr. Edward Page, who is a senior doctor. And you know once Dr. Andrew Manson got an opportunity to show his caliber, and that particular night call by Joe Morgan, whose wife was expecting their first child, brought a fruitful thing for the doctor, and it proved very fruitful for the doctor, because after that his career was affected very much by this particular incident. And Andrew Manson, when he came to know that there was time in delivery, then he waited in the kitchen. At the same time, the old woman, mean to say the mother-in-law of Susan Morgan, offered the doctor tea, and the doctor comes to know that the lady was very wise, as he did not want the doctor to run away, saying that he would come later. That's why she prepared a cup of tea for the doctor, but the doctor assured the women that he was not going anywhere. He would stay over there, and he would keep an eye on the situation. And it happened so. Suddenly, after some time, when it was morning time, almost morning time, before dawn, we can say, before dawn, the doctor was called in, and the doctor at that time decided that he must perform his duty. And after a lot of efforts, the baby was born, and the doctor were very much shocked to see that the baby was lifeless, and breathing was not going on. Then he handed the child to the nurse. um, the then he concentrated on the lady means Susan Morgan. He injected medicines, and then when he was sure that his heart had got some strength, he concentrated on the child, and he asked the nurse to bring two basins with some cold water and hot water, and like a crazy juggler, he dipped the newborn baby, first in the cold water, then hot water, then cold water, then hot water. This procedure continued for 15 minutes, and there was no result. And then what happens, we'll come to know whether the baby was saved by the doctor or not. Okay, so let's start. The floor was now a draggled mess. Stumbling over a sopping towel, Andrew almost dropped the child, which was now wet and slippery in his hands, like a strange white fish. जो फ्लोर था वो बिल्कुल मैस ड्रैगल्ड मीन्स स्पॉइल्ड he the floor had become dirty, and the things were lying at sixes and sevens. सिक्सटीज एंड सेवन्स का मतलब सारी चीज़ें अस्त व्यस्त तरीके से पड़ी हुई थी वहाँ पर। एक गीले सोपिंग का मतलब वेट ड्रिपिंग, एक गीले टावल के ऊपर झुकते हुए एंड्रू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड। एंड्रू ने लगभग बच्चे को गिरा ही दिया था। विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड्स लाइक स्ट्रेंज वाइट फिश। जो बच्चा जो अब गीला था और उसके हाथों में बिल्कुल स्लिपरी था, फिसलने वाला था, एक स्ट्रेंज वाइट फिश की तरह। वो बच्चा उसके हाथ से गिर जाता, लेकिन वो बच गया। फॉर मर्सी सेक डॉक्टर विम्पर्ड द मिड वाइफ, इट्स स्टिल बॉर्न। जो मिड वाइफ है वो डॉक्टर को नोटिस करती है कि व्हाट द डॉक्टर वॉज डूइंग ओवर देयर, एंड व्हेन
She saw that doctor was making only useless efforts. Then she said that for mercy's sake, कि भगवान के लिए इस बच्चे पर दया करो, यह भी अभी जन्मा है और आप इसके क्या कर रहे हैं इसके साथ में, ये मर गया है, छोड़ो इसको. एंड्रू डिड नॉट हीड हर का मतलब पे अटेंशन टू हर. लेकिन एंड्रू ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. बीटन, डिस्पेयरिंग, हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, ही स्टिल persisted in one last effort, rubbing the child with a rough towel, crushing and releasing the little chest with both his hands, trying to get breath into that limp body. और अभी हारा हुआ था. बीटन का मतलब एग्जॉस्टेड था, डिस्पेयरिंग था. डिस्पेयरिंग मीन्स हताश था, निराश था, होपलेस था. हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, क्योंकि उसने हाफ एन आवर, आधे घंटे तक यूजलेस, उसके जो एफर्ट्स थे वो सारे बेकार गए थे. लेकिन उसने लास्ट टाइम एक बार फिर से कोशिश करने की, उसने पूरी कोशिश की कि उसने एक लास्ट एफर्ट करने की कोशिश की. उसने किया, एक रफ टॉवल से बच्चे को रगड़ा और उसकी जो टाइनी चेस्ट थी उसको अपने दोनों हाथों से उसको दबाया, फिर रिलीज़ किया, दबाया, रिलीज़ किया, ट्राइंग टू गेट. और उस लिम्प बॉडी के अंदर, दैट वाज लैक्स बॉडी, उसके अंदर सांस फूंकने की पूरी कोशिश कर रहा था डॉक्टर. And then, as by a miracle, the pygmy chest, which his hands enclosed, gave a short, convulsive heave, another and another, Andrew turned giddy. अब जैसे कोई मिरेकल हुआ हो, वहाँ पर कोई चमत्कार हुआ हो, उस बच्चे की छोटी सी छाती जो उसके हाथों के बीच में थी, एनक्लोज्ड का मतलब सराउंडेड बाय हिज हैंड्स, उसमें थोड़ी सी हरकत होती है, एक हिचकी आती है. हीव, कन्वल्सिव हीव का मतलब एक होता है, तो कन्वल्सिव मीन्स होता है दैट इज़ इनवॉलेंट्री मूवमेंट, यानी कि ऐसी मूवमेंट जो कि अपने आप हो रही थी और अपने आप का मतलब बच्चा कर रहा था वो, दैट वाज कन्वल्सिव मूवमेंट थी उसकी. हीव, एक हिचकी आती है उससे, अनदर एंड अनदर, और ही. हीव का मतलब होता है उसको सांस आती है और वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट के साथ उसे सांस लेता है, फिर दूसरी एंड जो है उसको सिर चकराने लगता है. और टर्न गीडी का मतलब होता है सिर चकराना, उसका सिर चकराने लगता है. और द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग beneath his fingers after all that unavailing striving was so exquisite it almost made him faint. The sense of life, वो लाइफ की समझ, स्प्रिंगिंग beneath his fingers, अब वो उसके फिंगर्स के नीचे, वो बिल्कुल, यानी कि उसमें सांस आ रही थी उस बच्चे के अंदर. आफ्टर ऑल दैट अनअवेलिंग स्ट्राइविंग, here we come to know that the sense of life springing beneath his fingers after all that unavailing striving, उसके जो unavailing का मतलब होता है जो यूजलेस जो एफर्ट्स थे, स्ट्राइविंग का मतलब हार्ड वर्क जो था उसका, वो सो एक्सक्विजिट, वो इतने ज़्यादा तीव्र थे, फास्ट थे और बेस्ट थे. इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, कि उससे उसने चक्कर आने लगे, यानी कि जो डॉक्टर था उसको चक्कर आने लगे. ही रीडबल्ड हिज एफर्ट्स फीवर्सली होता है जस्ट लाइक ए मैड पर्सन, और उसने फीवर्सली अपने एफर्ट्स को डबल कर दिया. द चाइल्ड वॉज गास्पिंग नाउ, गास्पिंग का मतलब बच्चा पेंट कर रहा था, हाँप रहा था, PANTING, बच्चा अब हाँप रहा था डीपर एंड डीपर. अ बबल ऑफ म्यूकस केम फ्रॉम वन टाइनी नोस्ट्रिल, अ जॉयफुल इरिडिसेंट बबल, और एक बबल ऑफ म्यूकस, उसके नाक में से जो छोटा सा जो नोस्ट्रिल था उसमें एक म्यूकस का बबल जो है वो बबूला बाहर आता है, बुलबुला. अ जॉयफुल इरिडिसेंट बबल, जॉयफुल इरिडिसेंट का होता है चमकदार, यहाँ पर इंद्रधनुष्य भी कह सकते हैं, चमकदार भी कह सकते हैं. वो जॉयफुल इरिडिसेंट बबल बाहर आता है. द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, अब जो बच्चे के लिम्स थे, हाथ पैर थे, वो अब बोनलेस नहीं रहे थे.
यानी कि ब्लैक्स नहीं थे, उनमें जान आ गई थी। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, अब सिर भी जो था वो स्पाइनलेसली अब पीछे की तरफ लटक नहीं रहा था। द ब्लैक एंड स्किन वॉज ऑल स्लोइंग टर्निंग पिंक, और जो ब्लैंड स्किन, जो उसकी वाइटिश स्किन थी, वो अब धीरे धीरे पिंक में पिंक हो रही थी वो। देन एक्विजिटिवली exquisitely came the child's cry, and slow and then exquisitely came the child's cry, और धीरे धीरे फिर उस बच्चे की जो चिल्लाहट है वो आती है। डियर फादर इन हेवन, द नर्स सॉफ्ट हिस्ट्रिकली, और पागलों की तरह नर्स जो है वो सुबह के लेने लगती है, रोने लगती है, और कहती है कि वो भगवान का भला हो। इट्स कम अलाइव, ये जिंदा हो गया, बच्चा बच गया। एंड्रू हैंडेड हर द चाइल्ड, और एंड्रू ने उस बच्चे को उसको सौंप दिया। ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड, वो उसने कमज़ोरी महसूस की, उसे चक्कर आ रहे थे। अबाउट हिम द रूम ले इन ए शडरिंग लीटर, ब्लैंकेट्स, टॉवल्स, बेसिन्स, soiled instruments, the hypodermic syringe impaled by its point in the linoleum, the ewer knocked over, the kettle on its side in a puddle of water. So here we come to know what was the condition of the floor. सो हेयर वी कम टू नो एंड्रू, जो एंड्रू था, एंड्रू मैनसन डॉक्टर, उसने बच्चे को उस नर्स को हैंड ओवर कर दिया। उसने काफ़ी कमज़ोर महसूस किया, उसे चक्कर आ रहे थे, और उसके आसपास कमरे में जो गंदगी पड़ी हुई थी, जो कूड़ा करकट पड़ा हुआ था, तो लीटर का मतलब होता कूड़ा कचरा जो पड़ा हुआ था, वो कूड़ा कचरा कमरे में इस तरीके से पड़ा हुआ था कि उसे देख करके किसी को भी सिहरन चढ़ जाए। शडरिंग का मतलब होता है काफ़ी आदमी को बहुत बुरा लगे, एकदम से उल्टी आ जाए, तो ऐसा था। शडरिंग पैदा करने वाला लीटर वहाँ पर कूड़ा कचरा था। ब्लैंकेट्स वहाँ थे, कंबल थे, टॉवल थे, बेसिन्स थे, और कुछ सोइल्ड इंस्ट्रूमेंट थे जो कि काफ़ी मैले कुचले हो गए थे वो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और हाइपोडर्मिक सिरिंज थी, जिसकी जो पॉइंट, जो नोक था, इसकी जो नुकीला हिस्सा होता है, उसको तोड़ दिया गया था। लिनोलियम लिनोलियम में फंसा दिया गया था, उसको इम्पेल किया गया था। तो लिनोलियम क्या होता है? लिनोलियम इज ए काइंड ऑफ फ्लोर कवरिंग होती है। आपने कई शॉप्स वगैरह पे देखा होगा, जो वो किसी फ़र्श के ऊपर बिछाई जाती है इसको, और काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है ये। कई बार फर्श टूटा हुआ होता हो तब इसको कवर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो लिनोलियम है ये, इट्स ए काइंड ऑफ फ्लोर कवरिंग, ठीक है। द ईवर नॉक्ड ओवर, और जो बड़ा बर्तन था वो उसको नीचे गिराया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर जो यूवर है वो EWER, यूवर इसका प्रोनाउंसिएशन है, और इसका जो मतलब होता है वो होता है पोट, जिसमें पानी वगैरह डालते हैं। सुराही भी कहते हैं इसे, घड़ा भी कहते हैं, मटका भी कहते हैं। जो सुराही थी उसको वहाँ पर लुढ़की हुई थी। द कैटल ऑन इट साइड इन ए पडल ऑफ वाटर, और पानी का जो वहाँ पर पडल, मतलब जहाँ जहाँ पानी बिखरा हुआ था, वहाँ पर एक कैटल जो थी वो भी साइड में पड़ी हुई थी। अपॉन द हडल्ड बेड द मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वे क्वाइट थ्रू द एनेस्थेटिक, और वहाँ पर अपॉन द हडल्ड बेड, so in this way, come to know that the lady was lying on the Suzanne Morgan was lying in still bed, and that bed was huddled, means crowded. That was surrounded by different things. Okay, that's why it has been used as huddled. वैसे हडल का मतलब होता है क्राउज करना या दुबकना, ठीक है। तो लेकिन यहाँ सिमटा हुआ द, लेकिन यहाँ पर हडल बेड का मतलब यहाँ पर है कि दैट बेड वॉज सराउंडेड बाई अ नंबर ऑफ थिंग्स, और जो मदर थी अभी भी उसे होश नहीं था, क्योंकि उसे एनेस्थीसिया दिया गया था, और उस एनेस्थेटिक कंडीशन से वो धीरे 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 बाहर आने की कोशिश कर रही थी। ड्रीमिंग का मतलब था अभी वो सपने की दुनिया में थी, इसका मतलब सो रही थी, ठीक है। राइटर ये कहना चाहता है कि वो अभी सो रही थी। द ओल्ड वुमेन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, और जो बूढ़ी औरत थी वो अभी भी दीवार के साथ खड़ी थी। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, लेकिन उसके हाथ जो थे अभी साथ थे, यानी कहने का मतलब कि शी हैज़ फोल्डेड हर हैंड्स, हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, शी वॉज प्रेइंग, और उसके होठ लगातार हिल रहे थे बिना किसी साउंड के, और वो प्रे कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। मैकेनिकली एंड
wrung out his sleeve, pulled on his jacket. मैकेनिकली होता है, एक मशीन की तरह एंड्रयू ने क्या किया, अपनी स्लीव को एकदम से निचोड़ा और अपनी जैकेट को पहना। पुल्ड ऑन का मतलब पहनना। आई विल फैच माई बैग लेटर, नर्स, नर्स को बताया कि मैं बैग बाद में लेके जाऊँगा। ही वेंट डाउन स्टेयर्स थ्रू द किचन इन टू द स्कलरी, और वो नीचे सीढ़ियों से नीचे चला गया किचन में से होते हुए, और वो स्कलरी जो है वहाँ से जो है, तो यहाँ स्कलरी जो है, स्कलरी इज ए प्लेस वेयर डिशेज आर वॉश्ड, जहाँ बर्तन साफ़ किए जाते हैं, बर्तन मांजने की जो जगह होती है उसे बोलते हैं स्कलरी। हिज लिप्स वर ड्राई, होठ उसके सूखे हुए थे। एट द स्कलरी ही टुक ए लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, और स्कलरी में उसने जो है पानी पिया। ही रीच फॉर हिज हैट एंड कोट, और उसने अपनी टोपी और कोट लिया। आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेमेंट विद ए टेंस एक्सपेक्टेंट फेस, और बाहर जो खड़ा हुआ था पेमेंट के ऊपर, और पेमेंट होता पगडंडी के ऊपर खड़ा हुआ था, और वो भी काफ़ी तनाव में था, और उसका जो फेस था वो एक्सपेक्टेंट था। एक्सपेक्टेंट का मतलब जैसे कि किसी चीज़ के बारे में अपेक्षा कर रहा हो, और अपेक्षा थी उसे बच्चे की। ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, बोथ ऑल राइट। तो डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है, दोनों ठीक है। इट वॉज़ क्वाइट लाइट, और काफ़ी रोशनी हो गई थी उस समय तक, सुबह नियरली 5 o'clock, तो सुबह के 5 बज चुके थे, और 5 बज गए तो रोशनी वहाँ पर डाउन हो चुका था। अ फ्यू मिनट्स, ए फ्यू माइनर्स, माइनर्स का मतलब होता है जो खान पे काम करते हैं, माइंस पे काम करते हैं, दोज नोन एज माइनर्स। अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट्स, और पहले स्ट्रीट के अंदर कुछ माइनर्स वहाँ ऑलरेडी दिखाई दे रहे थे। द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, जो नाइट शिफ्ट की जो पहली शिफ्ट थी वो बाहर निकल रही थी। मूविंग आउट का मतलब खान से बाहर निकल रही थी, नाइट शिफ्ट काम करके बाहर आ रहे थे। एज एंड्रू वॉकड विद दैम, जैसे जैसे एंड्रू उनके साथ चल रहा था। स्पेंट एंड स्लो, काफ़ी हारा हुआ था, स्लो चल रहा था। हिज फुट फॉल्स इकोइंग विद द अदर्स अंडर द मॉर्निंग स्काई, मॉर्निंग स्काई के नीचे उसके जो पैरों के जो फुट स्टेप्स जो थे वो गूंज रहे थे। ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, और वो जो है अनोइंगली, अनअवेयर, बिना किसी अवेयरनेस के वो सोच रहा था, सोचना जारी रखा। ऑब्लिवियस टू ऑल अदर वर्क, और बाकी सभी काम से अनजान। ऑब्लिवियस का मतलब अनजान, ठीक है, अनअवेयर था। ही हैड डन इन ब्लेनली, ब्लेनली में जो उसने काम किया तो सबसे वो बिल्कुल बेखबर था। आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, हे भगवान, आखिरकार मैंने कुछ वास्तविक काम किया है। और इस तरीके से ये अपना चैप्टर जो है, स्टोरी जो है कंप्लीट हो जाती है। आई होप यू मस्ट हैव गॉट द line to line explanation of the story. I have done my best, and if you have any problem then please let me know, and please don't forget to give your suggestions in the comment box. Okay, thank you, have a nice day.